This is the question of circle. The question is if AB is a chord of a circle with center O, AOC is a diameter, AOC diameter, and AT is the tangent. AT is tangent at point A, as shown in the figure. Prove that angle BAT, this angle is equal to angle ACB. It means we have to prove this angle is equal to this angle. Say this angle is 1, angle 1, or this angle is angle 2. Let this angle is angle 3. We need to prove angle 1 is equal to angle 2. Solution. तो इसको कैसे करना है? Let us take this triangle ABC. In triangle ABC, by angle sum property, angle 1 plus angle 3 is equal to 90 degree. Why? Because angle in the semicircle is equal to 90 degree. It means this angle is 90 degree. This angle is 90 degree. Or you can say that let us do it एक और तरीके से करते हैं. Because of angle sum property, angle 1 plus angle 3 plus angle ये 4 कर लो, consider कर लो. This angle is 4. Angle 4 is equal to 180 degree. Okay, because of angle sum property. But this angle angle 4 is equal to 90 degree because of angle in the semicircle. If this is the this segment, this is the segment AC, this is the segment, and it is forming an angle 4 at the circumference. It means this angle is of 90 degree. So angle 1 plus angle 3 is equal to 180 degree minus 90 degree, because angle 4 is equal to 90 degree. Angle in semicircle, because angle in semicircle is always equal to 90 degree. So angle 1 plus angle 3 is equal to 90 degree, or which implies that angle 3 is equal to 90 degree minus angle 1. Now take this is angle 3 plus angle 2. Angle 3 plus angle 2. We know that angle 3 plus angle 2 is equal to 90 degree. Why? Because tangent at a point A to the circle is always perpendicular to the radius OA. So this is angle 3 plus angle 2 is equal to 90 degree, or angle 3, put the value of angle 3 from 1. Suppose angle, but angle 3 is equal to 90 degree minus angle 1. So put the value of angle 3 here. 90 degree minus angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree. ये कैंसिल हो जाएंगे और एंगल 1 उस तरफ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? एंगल 2 is equal to angle 1. This we need to prove. So angle ACB is equal to angle BAT. Hence proved. Okay. Now the second question is, in figure, this is the figure, tangent at a point C. This is the tangent at point C. This is the tangent PC, or you can say that extend it further, and P, B, A, B, C, P, Q. Suppose PQ is the tangent at point C to the circle with center O. Okay.
if and diameter when extended, this is the diameter, AB's diameter, when it is extended and this is the tangent, they intersect at the point P. Okay. If angle PCA, this angle is equal to 110 degree, 110 degree, then find angle C, B and A. तो हमने कौन सा एंगल फाइंड करना है? CBA. तो लेट अस कंसीडर दिस एंगल. ये वाला एंगल जो है ये एंगल 1 और ये वाला एंगल आप 2 ले लो. चलो ठीक है, यानी कि आप ऐसे कर लो, लेट इसको एक थोड़ा सा ना, इसको मैं नीचे बना देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा करके. ये हो गया आपका ऐसे, ये वाला सी को ये ऐसे, ये सेंटर आ गया हमारा O, ये हमारा आ गया B और ये आ गया हमारा A. ठीक है, और ये हमारी आ गई टेंजेंट एट दिस पॉइंट. ओके, तो ये वाला एंगल हमें दिया हुआ है 110 डिग्री. ये कितना दिया हुआ है? 110 डिग्री. ओके, ये वाला एंगल हम कंसीडर कर लेते हैं एंगल 1 और ये वाला एंगल कर लेते हैं कंसीडर हम एंगल 2. ओके, और ये वाला एंगल जो दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 110. ठीक है, तो हमने कौन सा एंगल निकालना है? हमने निकाला है एंगल कौन सा? C, ये B है और ये A है. हमने कौन सा फाइंड आउट करना है? ये वाला एंगल CBA. ओके, तो अब ये वाला एंगल, दिस एंगल, this is the 110 degree, PCA is 110 degree. ओके, सो ये हमारा PCO, PCO कितना होगा? एंगल PCO, this angle is equal to 90 degree because tangent to the circle at a point is perpendicular to the radius at that point. So this angle is a 90 degree. PCO is a 90 degree. If we subtract this PCO from PCA, then we will get angle 2. Okay, so angle PCA minus angle PCO is equal to कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा PCA कितना है? PCA 110 है. ये हो जाएगा 110 माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो गया? 20 डिग्री. ठीक है, सो दिस एंगल इज 20. एंगल 2 इज इक्वल टू 20 डिग्री. दिस एंगल 2 हमारा PCO, सॉरी OCA, PCA एंगल PCA माइनस एंगल PCO इज इक्वल टू एंगल कौन सा आ गया? OCA, एंगल OCA. सो एंगल OCA इज इक्वल टू 20 डिग्री. ओके, so if this angle is 20 degree, ओके, ये वाला एंगल हमारा आ गया 20 डिग्री. ठीक है, तो अभी हमने फाइंड आउट कर सकते हैं ये वाला एंगल 90 डिग्री माइनस दिस वाली एंगल.
नाउ अभी हम करेंगे एंगल ओ सी बी. नाउ in this segment, see this segment AB, this is the segment, and angle ACB is equal to 90 degree. Angle ACB is equal to 90 degree. Why? Because the angle in the semicircle. क्या करेंगे? Angle in semicircle. ठीक है, बिकॉज दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल. सो दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2. एंगल ये वाला एंगल जो होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ये हो गया हमारा एंगल 1. इसको एंगल 1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो एंगल 1, अभी एंगल 2 हमने फाइंड आउट किया. एंगल ओ सी ए इज इक्वल टू एंगल 2 कर लो कंसिडर इसको. ये इक्वेशन 1 आ गई हमारी. ठीक है, एंगल ओ सी ए हमने कंसिडर कर लिया एंगल 2, तो इसको हमने फाइंड आउट किया. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 20 डिग्री. तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल 2 दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री. तो ये कितना आ गया हमारा? 70 डिग्री. ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया हमारा? 70 डिग्री. तो अब ये ट्रायंगल ले लो आप, ओ सी बी. ओ सी एंड ओ बी दोनों रेडियस है. ठीक है, देयरफॉर ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, बिकॉज रेडियई दोनों बोथ रेडियई है. ठीक है, तो दोनों इक्वल होंगे. तो इसका मतलब अगर एंगल 70 डिग्री, एंगल 1 जो है 70 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल सी बी ए बी, इसको एंगल 3 मान लो आप. ठीक है, तो एंगल 1 is also equal to angle 3 is equal to 70 degree. Why? Because sides angles opposite to, because angles, ये आपने पढ़ा ही है ना, angles opposite to equal sides of a triangle are equal. So in triangle, कौन सी ट्राइंगल है? ओ सी बी. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3. एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 बिकॉज इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है? ओ बी. और एंगल 3 के ऑपोजिट कौन सी साइड है? ओ सी. ये दोनों साइड जो है ये दोनों बराबर है, बिकॉज दोनों रेडियस है इस सर्कल के. तो इसका मतलब जो इनके साइड्स के ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. और एंगल 1 हमने कितना निकाला है? एंगल 1 हमने निकाला है 70 डिग्री. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 कितना हो जाएगा? 70 डिग्री. सो एंगल 3 की वैल्यू हमने एंगल 3 कितना है? यही तो हमने फाइंड आउट करना था. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल सी बी ए. सो इज इक्वल टू कितना आ गया? 70 डिग्री. ओके, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए. अब आगे चलते हैं. ठीक है, ये क्लियर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये मिटाने में बहुत टाइम लगता है इसको.
ठीक है, ये क्लियर हो गया ना आपको? अब आगे वाला क्वेश्चन, prove that the segment joining the points of contact of two parallel tangents passes through the center of circle। क्या क्वेश्चन क्या कहता है? प्रूव दैट द सेगमेंट, ये वाला एक सर्कल है, हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट सपोज ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स। सपोज करो एक ये टेंजेंट है और एक ये पैरेलल टेंजेंट्स है दो, ठीक है, ए बी सी और डी, ये दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं। तो वो क्या कहता है? प्रूव दैट द सेगमेंट जॉइनिंग दी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट्स, इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से हैं? सपोज कर लो ये P है और ये Q है। टू पैरेलल पासेस थ्रू द सेंटर, मतलब जो सेगमेंट इन पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट्स को ज्वाइन करती है वो सर्कल के सेंटर से होके निकलती है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन पहले तो हम करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है दो पैरेलल टेंजेंट्स है ए बी और सी डी। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन से है? पी एंड क्यू, एंड पी क्यू इज द सेगमेंट। तो हमने प्रूव करना है पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ठीक है, हमने पीओ क्यू करना है, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव करना है। वे सी दिस इज ओ इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने? कंस्ट्रक्शन कर लेनी है हमने। एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये सपोज करो एक लाइन ड्रॉ कर ली, ए बी सी डी ई ओ, एक लाइन ड्रॉ कर ली, दैट इज अ पैरेलल टू ए बी। ड्रॉ EO parallel to AB. No, proof. Now EO is a parallel to AB and PO is a is a transversal. Then this angle 1 angle 1 is equal to angle 2,
Why? Because AB is parallel to EO and PO is the transfer. PB, suppose PQ is the transversal. Then angle 1 is equal to, and यहाँ पे लिख दो PQ is a transversal. Then angle 1 is equal to angle 2 because alternate interior angles. Okay, but angle 1 is equal to, angle 1 किसके बराबर है, is equal to 90 degree because tangent at a point to the circle is perpendicular to the radius through the point. So angle 1 is equal to, because tangent to a circle at a point is perpendicular to the radius through the point, So angle 1 is equal to 90 degree. Okay. So angle 1 is equal to angle 2 is equal to each 90 degree. Similarly, suppose करो this angle is the angle 3, this angle is a 4. Similarly, if EO is parallel to AB and AB is parallel to CD, it means EO is parallel to CD. Therefore, angle 3 is equal to angle 4 is equal to 90 degree. Same, and angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degree because each angle 2 is also is equal to 90 degree and angle 3 is also 90 degree. So by axiom 2 POQ, therefore POQ is a straight line. Okay, fine. Because of axiom 2, if sum of two linear angles is 180 degree, then their uncommon sides form a straight line. Okay, therefore POQ is a straight line. मैं यहाँ लिखता नहीं हूँ, ये simple है because of axiom LP linear pair axiom 2, because of linear pair axiom 2. Okay, if sum of two angles is equal to 180 degree, linear pair angle is equal to 180 degree, then uncommon sides of angles form a straight line. Okay, fourth question rather. If AB is the diameter, if AB is
a diameter and AC is a chord of circle with the center O such that angle BAC is equal to 30 degree. The tangent at C intersects AB produced at point D. Prove that BC is equal to BD. BC is equal to BD. ठीक है? If AB is the diameter, if this is the circle, okay, ये यहाँ AB is diameter of a circle AB is diameter of circle which is produced to meet AB is the diameter and AC is a chord of circle with center O such that angle BAC this BAC, this is a C, such that angle BAC is equal to 30 degree. ये हमारा एंगल 30 डिग्री. The tangent at C intersects AB. Tangent at C intersects AB produced at the point D. Prove that BC, suppose BC, B और C को ज्वाइन कर दो हम, BC is equal to BD. ओके, हमने ये प्रूव करना है BC is equal to, एक्चुअली फिगर प्रॉपरली बनी नहीं है लेकिन उन्होंने कहा प्रूव करना है BC is equal to BD, हमने प्रूव करना है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि AB is the diameter of a circle with center O and AC जो है this is a chord और एंगल BAC हमें दिया हुआ है 30 डिग्री. टेंजेंट जो है यहाँ पे एट पॉइंट C है और AB को अपने डायमीटर को अगर प्रोड्यूस किया है तो वो D के ऊपर जाके मिलते हैं और हमने प्रूव करना है BC is equal to BD. ठीक है, तो ये हमने प्रूव करना है. तो हम इसको सपोज कर कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं पहले. Construction. Join OC और
OC को ज्वाइन कर लीजिए आप। तो इन ट्रायंगल प्रूफ, इन ट्रायंगल AOC, ठीक है, AOC के ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा? सपोज कर लो ये एंगल हमने ले लिया एंगल 1, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOC OA इज इक्वल टू OC, बोथ रेडियस है, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल किसके बराबर? OAC के, एंगल OAC is equal to 30 degree because angles opposite to equal sides in a triangle are equal, because वो तो अभी लिखे होंगे ना, angles opposite to equal sides in a triangle are इक्वल, ठीक है। सो दिस एंगल 1 इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया? एंगल 30 के। नाउ इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, नाउ दिस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। व्हाई? बिकॉज दिस इज एंगल इन सेमी सर्कल। एंगल ACB is equal to 90 degree because angle in semicircle, okay. So ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? ये वाला एंगल, इसको हम मान लेते हैं एंगल 2। एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 1 कितना? 30 डिग्री है, तो एंगल 2 किसके बराबर हो गया? 90 माइनस 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये आ गया हमारा, ठीक है। एंगल 2 कितना हो गया हमारा? 60 डिग्री, ओके। नो अभी ये अगर 60 डिग्री है तो इसके अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? इसके अपोजिट साइड ये है इन ट्रायंगल OCB, और इसके अपोजिट एंगल कौन सा है? ये दोनों, ये वाली दोनों साइड बराबर होगी, दोनों रेडियस है। इसके सामने वाला एंगल ये वाला होगा, इसको हम मान लेते हैं एंगल 3, ठीक है। तो इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल OCB angle 2 is equal to angle 3 is equal to 60 degree because same, because sides यहाँ पे आ जाएगा sides opposite to equal angles are in a triangle, sides opposite to equal angles are equal in a triangle, so angle 2 is equal to angle 3 is equal to 60 degree, okay। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये एंगल कितना हो जाएगा? इसको मान लेते हैं हम एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल्स ये लीनियर पेयर एंगल्स हो गए, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 3 की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। तो एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। तो ये कितना आ गया? 120 डिग्री। अभी ये हमारा जो हो गया 120 डिग्री एंगल 4 हो गया। अभी ये वाला OC इज परपेंडिकुलर टू CD। अब ये वाला एंगल सपोज करो हम मान लेते हैं, अब ये वाला एंगल ले लो सपोज करो, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री।
एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी कितना हो गया? एंगल 90 डिग्री। एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज tangent at a point to a circle is perpendicular to the radius through that point. So OC is radius and CD is a tangent. So OCD is equal to 90 degree. Or you can say the radius is perpendicular to the tangent through the point of a contact. यहाँ पे लिखो because radius is perpendicular to the tangent at the point of contact of circle. Okay, therefore angle OCD is equal to 90 degree. तो ये वाला एंगल कितना हो गया? ये वाला एंगल हम एंगल 2 प्लस और ये वाला एंगल 5 सपोज कर रहे हैं। इसका मतलब हो गया ये वाला एंगल, एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, और एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो एंगल 2 हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री फ्रॉम सेकेंड। सो एंगल 5 इज इक्वल टू 90 माइनस 60 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम सेकेंड। ओके, तो ये वाला हमारा जो एंगल 5 आ गया, ये वाला एंगल 5 दैट इज इक्वल टू 30, कितना आ गया? 30 डिग्री। ओके, नाउ इन ट्राइंगल, कौन सी ट्राइंगल? BCD, BCD एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 6 ये ले लीजिए आप, दिस एंगल। ठीक है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कितना हो गया? एंगल 4 हमने कैलकुलेट किया हुआ है 120 डिग्री, ये 3 ले लीजिए। एंगल 4 कितना है? 120 प्लस एंगल 5 कितना है? ये देखिए यहां पे, ये 4 ले लीजिए, 30 डिग्री इक्वल प्लस एंगल 6 is equal to 180 degree. So angle 6 is equal to 180 minus angle 150 is equal to 30 degree. So angle 6 जो हो गया वो कितना हो गया? इसको 5 कितना हो गया? 30 डिग्री। तो हमारा जो एंगल 5 है वो कितना है? दैट इज आल्सो एंगल 5 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 6 इज इक्वल टू 30 डिग्री ईच। सो इट मीन्स BC is equal to BD. BC is equal to BD because sides opposite to equal angles, because sides opposite to equal angles in a triangle are equal. So BC is equal to BD. Hence proved. यही तो हमने प्रूव करना था। ओके फाइन, नेक्स्ट अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म कर देंगे।
इसको आपको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि इसी में काफ़ी जो सर्कल में सम है वो काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन बेस्ड 2 या 3 जो थ्योरम्स हैं जो पहले मैंने करवाई हैं, 2 थ्योरम्स और 2 थ्योरम्स जो आगे करवाएंगे उसी के ऊपर बेस्ड ही होंगे। तो वही उसी उसी थ्योरम्स के बेस के ऊपर ही प्लस जितने मैंने वो आपको पॉइंट्स दिए हैं इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सर्कल के, वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to the circle passes through the center of the circle। तो क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल। एक सर्कल है, वो कह रहा है ये एक टेंजेंट है, वो कह रहा है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये वाला जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। कहने का मतलब अगर ये टेंजेंट है, एक पी क्यू अगर टेंजेंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर, दिस इज द सेंटर ओ, this is O dash, then O dash जो RO dash which is perpendicular to the tangent PQ passes through the center of the circle। इसको हमने प्रूव करना है। तो हम अज्यूम कर लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं। लेट अस अज्यूम दैट O dash RO dash O dash is suppose करो RO dash is not passing through the center of the circle। okay, RO dash is not passing through the center of the circle with center O। let us assume that RO dash which is perpendicular to tangent PQ is not passing through the center of the circle O। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? RO dash is perpendicular to PQ and O is center of the circle and RO is also perpendicular to PQ। Why? Because tangent at the point of contact to a circle is always perpendicular to the center to the radius through the point। ठीक है, but इसका मतलब हो गया RO dash is perpendicular to the to PQ and RO is also perpendicular to PQ, but that is not possible, but that is not possible। So our assumption is
is wrong. This is possible only if O and O dash coincide. So O and O dash must coincide, otherwise this is not possible. Thus R O dash passes through the center O of circle. ओके फाइन. सो आज का सेशन कंप्लीट होता है. अगले सेक्शन में हम थ्योरम्स करेंगे, 2 जो रह गई हैं. थैंक यू.